Tell me the equation of Maxwell. What equation he has given? 1 by n du dnu by du is equal to क्या था वो? So 4 pi 4 pi m by 2 pi RT whole to the power m by 2 pi RT raised to power 3 by 2 into e to the power minus mu square by 2 RT u square. correct. And listen, जो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने काम किया था, in that work just understand what they wanted to tell you. पहले समझते हैं, उसके बाद पॉइंट्स लिखेंगे इसके ऊपर, ठीक है? Let's say here I am plotting fraction of molecules. And here I have velocity. Now listen, the curve was like this. Let's say at lower temperature, temperature is T1, the curve was like this. One second, there was a power cut where? Okay. One second, participant. Okay. Now let's say this is the temperature T1. Hey, इसका कहने का क्या मतलब है? Like, actually the rain is very awesome here. ठीक है, तो because of that rain no is happening, especially in that Khagar region and this Panvel region. So I'm like pretty sure a lot of areas will not have light. It's okay, am I? Okay, now listen. Uh, listen. Shall I say that this region is lower velocity region? Lower velocity u1 ले लेते हैं. इसका जो fraction है having the velocity u1 is this. Is it less or is it high? ज़्यादा है या कम है? सर कम है. कम है. Now understand that I'll take an intermediate velocity. मोस्ट प्रोबेबल उठा लेते हो, इंटरमीडिएट ही होती है, राइट? इसका फ्रैक्शन क्या है इंटरमीडिएट वेलोसिटी का? सर वेरी हाई. वेरी हाई. एवरीवन शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वेलोसिटी है हायर वेलोसिटी, इसका फ्रैक्शन क्या है? सर वेरी लो. वेरी लो. काफी. हाँ, अगेन इट इज लो. Shall I say this is the fraction of the molecules having this velocity. नाउ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने कहा था कि जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का जिनके पास लोअर वेलोसिटी है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग हायर वेलोसिटी, उनके फ्रैक्शंस कम है. एंड द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग इंटरमीडिएट वेलोसिटीज, दैट फ्रैक्शन इज हाई. और अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, द कर्व बिकम्स लाइक दिस. और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? अगेन सर और फ्लैटन हो जाएगा कर्व. हाँ, आई एम जस्ट स्टार्टिंग द थिंग अगेन. At this part no, I'll Neha, I'm not doing revision, just continuing the last class topic. I guess that much is required. That is temperature T3. This temperature is T2.
नाउ अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग. ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है. Shall I say that area under the curve will give you the net fraction, right? तुमको पूरा फ्रैक्शन कौन देगा? एरिया अंडर द कर्व, करेक्ट? Yes, sir. Now understand one thing. The fraction of molecule having u3 velocity, which is a higher velocity, or more than u3 velocity will be higher. So this is the fraction of molecules, that is the area under the curve. This is the fraction of molecule having velocity u3 and greater than u3. Agreed? इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी u3 होगी और ग्रेटर देन u3. अरे एक बात बताओ, एरिया अंडर द कर्व का जो एरिया अंडर द कर्व था वो पूरा फ्रैक्शन दे रहा था, एंड तुमको पता है समेशन ऑफ ऑल द फ्रैक्शन इज 1. तो इस एरिया का इस कर्व के अंदर का जो एरिया है, दैट नेट एरिया इज 1, करेक्ट? Yes, sir. तो अगर ये ब्लू वाले रीजन को देखो, अगर इस पूरे कर्व के अंदर का एरिया 1 है, तो ये जो एरिया है शैल आई से रफली 0.1 होगा. Yes, sir. अगर इसको 10 टाइम करूंगा तो पूरा कर्व आ जाएगा, करेक्ट? अब सुनो ध्यान से. पहले वेलोसिटी हायर थी u3, ठीक है? अब u3 फ्रैक्शन, the fraction of molecule containing u3 becomes that much. तो फ्रैक्शन क्या हुआ हायर वेलोसिटी का? बढ़ा कि कम हुआ? Increase was. बढ़ गया. Now understand that the fraction of molecules having velocity u3, you guys said it increases, it बढ़ गया. तो fraction of molecule having higher velocity, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो fraction of molecule having u3 और more than u3, ये पूरा एरिया आ जाएगा. Yes, sir. अच्छा, अब और टेम्परेचर बढ़ाया तो द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी u3 और मोर देन u3, ये वाला फ्रैक्शन होगा. सर हाँ बेटा. सर अगर हम टेम्परेचर बहुत एक्सटेंड तक अगर बढ़ा लेंगे तो क्या एक स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है क्या सर? पॉसिबल है बेटा, बट वी विल नॉट डू दैट. ठीक है, we will not, it keeps on becoming flat and at infinite temperature it is possible, but अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अगर कर्व ऐसा स्ट्रेट लाइन रहेगा. होगा तो एरिया तो आएगा ही नहीं नीचे. एरिया नहीं आएगा, कोई डाउट था लाइक अ सर. स्ट्रेट. इन्फिनिटी टेम्परेचर तो हो ही नहीं सकता ना बेटा. तो मतलब लाइक मतलब एरिया कर्व ऐसा ही रहेगा. ना मेरी ना थोड़ा सा बात समझना. अगर सपोज करो टोटल एरिया रिप्रेजेंट करता है 1000 मॉलिक्यूल्स को, कितने? 1000 मॉलिक्यूल. तो शैल आई से दैट पहले 100 मॉलिक्यूल्स के पास ग्रेटर वेलोसिटी थी, u3 क्या था? ग्रेटर था, करेक्ट? फ्रैक्शन क्या था? इनिशियल फ्रैक्शन हायर वेलोसिटी वाला u3 और ग्रेटर देन u3 वाला क्या था? ये फ्रैक्शन था पहले. तो ये फ्रैक्शन कितना था? 0.1. मतलब 0.1 फ्रैक्शन पूरे मॉलिक्यूल्स का हायर वेलोसिटी वाला था. तो 0.1 इंटू 1000 करोगे तो 100 मॉलिक्यूल्स आएंगे जिनका काइनेटिक, जिनका वेलोसिटी ज्यादा है. एग्रीड? Yes, sir. अच्छा, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग हायर वेलोसिटी क्या हुआ उसको? Increase हुआ sir. अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग हायर वेलोसिटी बढ़ गया तो क्या होगा? शैल आई से दैट अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गया तो ये एरिया अपने पूरे एरिया के कर्व के हिसाब से क्या होगा? ज्यादा होगा ही कम होगा? पहले 0.1 था तो मैं कह सकता हूं ना ये एरिया अपने पूरे एरिया के हिसाब से 0.3 होगा. अप्रोक्सीमेटली देख के पता लग रहा है ना? करेक्ट? Yes, sir.
और अगर और टेम्परेचर बढ़ाया तो ये हरा वाला जो एरिया है अपने पूरे 0.5 से भी थोड़ा ज्यादा है। 0.6 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर एक बात बताओ, मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर हायर वेलोसिटी के बढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन तो फिक्स है ना। अगर पहले 100 मॉलिक्यूल्स थे हायर वेलोसिटी के, अब 300 हो गए, अब 600 हो गए। तो हायर वेलोसिटी के अगर मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं तो इंटरमीडिएट और लोअर वेलोसिटी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? अगर एक साइड रिड्यूस हो रहे हैं। हाँ, अगर एक साइड मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हो तो दूसरी साइड मॉलिक्यूल्स क्या करोगे? सर पूरे आप repeat मॉलिक्यूल्स तो करेंगे? फिक्स ही है ना, पूरा फ्रैक्शन तो फिक्स ही है। तो अगर मॉलिक्यूल्स हायर वेलोसिटी के बढ़ रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल्स लोअर वेलोसिटी के और इंटरमीडिएट वेलोसिटी के थे वो क्या होंगे? वो क्या होंगे? सर आप रिड्यूस होंगे। कम होंगे ना। खुद ही देखो, लोअर वेलोसिटी u1 था, पहले फ्रैक्शन कितना था u1 का? हाई था। अब u2 का u1 का फ्रैक्शन क्या हो गया? कम। हरा लेके आओगे, हरे वाले कर्व के अंदर फिर से जो फ्रैक्शन है u1 का वो क्या हो गया? और कम। तो लोअर वेलोसिटी और इंटरमीडिएट वेलोसिटी के फ्रैक्शन कम होते हैं और हायर वेलोसिटी के फ्रैक्शन क्या होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे? बढ़ फिर जाते इंक्रीज होता है। अंडरस्टूड गाइस? अंडरस्टूड? यस सर। पहले मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पहले कितनी थी? इतनी थी, ब्लू वाली। अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रेड वाले की क्या होगी? शैल आई से अब क्या होगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रेड का? इट बिकम दैट मच बिग। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ा कि कम हुआ? ये इनिशियल वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल, अब ये फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल बढ़ा कि कम हुआ? सब बड़ा बढ़ा ना। और फ्रैक्शन जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैरी कर रहा था वो क्या हुआ? कम हुआ। पहले बढ़ा ज्यादा था फिर कम हुआ। गेटिंग इट? मैं भी तो यही कह रहा हूं, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे हायर एनर्जी के पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो लोअर एनर्जी के और इंटरमीडिएट एनर्जी के पार्टिकल्स क्या होंगे? कम होंगे। एग्रीड? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने दिया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस सर। आप एक और बार शॉर्ट में बता दें। जल्दी बता देते हैं। एक बार बताओ, एरिया अंडर द कर्व क्या है? इसका एरिया अंडर द कर्व क्या है? नेट फ्रैक्शन। इसका एरिया अंडर द कर्व क्या है? इसका एरिया अंडर द कर्व क्या है? सबका एरिया अंडर द कर्व 1 है, बिकॉज इंटीग्रेशन करोगे तो नेट फ्रैक्शन क्या होगा? समेशन ऑफ नेट फ्रैक्शन 1 आएगा। एग्रीड? हाँ, अब मुझे बताओ, पहले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग हायर वेलोसिटी ये था, ये छोटू सा एरिया था। अगर इस छोटू से एरिया को बड़े एरिया के साथ कंपेयर करूं तो 0.1 था। फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो इसी हायर वेलोसिटी का जो एरिया था वो बढ़ गया, तो फ्रैक्शन बढ़ गया। अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स के बढ़ गए तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम और इंटरमीडिएट वेलोसिटी के कम होंगे, बिकॉज फ्रैक्शन तो फिक्स है 1। अगर 1 में से 0.3 ज्यादा हो गया हायर वेलोसिटी का तो 0.7 ही रहा ना इंटरमीडिएट और लोअर वेलोसिटी का। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इंटरमीडिएट एंड लोअर वेलोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इतना समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ाओगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हायर वेलोसिटी के बढ़ेंगे। टेम्परेचर कम करोगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हायर वेलोसिटी के कम होंगे। अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हायर वेलोसिटी के बढ़ते हैं तो अगर इसका एरिया बढ़ गया रेड वाले का, हायर वेलोसिटी वाला, तो रेड वाले का जो बचा हुआ एरिया है वो इंटरमीडिएट और लोअर वेलोसिटी वाला है, वो कम ही हुआ ना। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग लोअर वेलोसिटी और इंटरमीडिएट वेलोसिटी डिक्रीजेस। अंडरस्टूड? हाँ, तो अगर 1000 में से 100 मॉलिक्यूल्स थे हायर वेलोसिटी के, पहले 900 थे इंटरमीडिएट और लोअर वेलोसिटी के, तो फ्रैक्शन क्या हो गया लोअर वेलोसिटी और इंटरमीडिएट का? 0.9। 1000 में से 900 मतलब 0.9। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो 300 मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा वेलोसिटी आ गई,
700 मॉलिक्यूल्स के पास इंटरमीडिएट एंड लोअर वेलोसिटी है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लोअर वेलोसिटी और इंटरमीडिएट वेलोसिटी का क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? सर रिड्यूस हो गया। हाँ नहीं, डाउट इज आस्क्ड बाय समवन नो। यस सर, मी हाँ तो क्या हुआ, कम हुआ ज्यादा हुआ? कम हो गया। कम हो गया, राइट? यस सर। ओके गाइस, समझ में आया इतना? डिड यू गेट दैट? तो सर इसका कंक्लूजन क्या? अभी सब कॉन्क्लूजन लिख के दूंगा, एक एक करके सारे कॉन्क्लूजन लिखूंगा। मैं बस अभी समझा रहा हूं कि होगा क्या। अंडरस्टूड? चलो ग्रेट, शैल वी मूव अहेड? और लिखना है तुमने इसे? डन सर। डन? सर 2 सेकंड। लो 2 सेकेंड लो। गाइस समझ में आया? आरना, यू गॉट इट? रिशिता? यस सर। हाँ यस सर। आरना, शक्ल से लग नहीं रहा कि समझ में आया है। यस सर, समझ आ गया। समझ आ गया? Okay. बाकी क्या है? Okay. Steffi, you understood that? Chinmay, got that? Not donkey. Okay, done. Sure. Very done, right? Okay, now where are we? Share up this now, guys. Yes sir. यस सर। Okay. Now, points of Maxwell Boltzmann कर्व। पहला पॉइंट, एक बात बताओ, ये फ्रैक्शन है, ये वेलोसिटी है। जो फ्रैक्शन है और जो कर्व है वो ऐसे स्टार्ट हो रहा है। एक बार बताओ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसके पास जीरो वेलोसिटी है कितना है? व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग जीरो वेलोसिटी? 0 sir. जीरो है ना? Yes sir. जो मॉलिक्यूल्स रेस्ट पर हैं, जिनका वेलोसिटी जीरो है, उनका फ्रैक्शन जीरो है। मतलब क्या हुआ इसका? सर मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स रेस्ट पर नहीं है। वेरी गुड, नन ऑफ द मॉलिक्यूल इज एट रेस्ट। सर मैं वीडियो थोड़ा सा लैग हो गया था सर, तो एक और बार बोलिए ना। ओके, 1 सेकेंड, नो 1 सेकेंड। मैंने क्या कहा कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी जीरो है, दैट इज जीरो। मतलब जब कोई भी मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी जीरो है, मतलब रेस्ट पर जो है उनका फ्रैक्शन जीरो है। मतलब कोई भी गैस पार्टिकल रेस्ट पर सर रेस्ट पर तो वेलोसिटी लाइक 0 है। बेटा एक बार बता, अगर तू रेस्ट पर है तो तेरी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। हाँ वही सर, 0 है। उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जिनकी वेलोसिटी जीरो है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जिसका वेलोसिटी जीरो है। एग्री? मतलब हाँ, सारे मॉलिक्यूल मोशन में है। एग्री? जी सर। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ,
एक और चीज समझाओ मेरे को ना थोड़ा सा ना डाउट है इसमें। अगर एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1, ठीक है, वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर रहा है जिसका वेलोसिटी v2 है। जब कोलिजन हुआ तो v2 वाला वेलोसिटी v3 हो गया और v1 वाला वेलोसिटी v4 हो गया। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल कोलाइड करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? सर चेंज हो रही है। चेंज हो रही है। तो खुद सोचो ना कि अगर एक मॉलिक्यूल एक कंटेनर के अंदर यहाँ से लेके अगर यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है तो बहुत सारी कोलिजन होगी बीच में। हर एक कोलिजन में उस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होगी? सर चेंज होगी। चेंज होगी। खुद सोचना एक चीज को। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने पता है क्या कहा? उसने बोला कि ये कर्व है, तुम कुछ भी कर लो कर्व यही रहेगा। अगर मैं इसको वेलोसिटी v1 मानूं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी v1 f1 होगा, करेक्ट? यस सर। मतलब उसने क्या कहा, मेरे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी अलग अलग है, बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी v1 इतना है और वो फिक्स ही रहेगा। उसने कभी चेंज किया क्या? नो सर। खुद सोचो, अगर 5 मॉलिक्यूल, अगर किसी कंटेनर में 5 मॉलिक्यूल है, उसकी वेलोसिटी v1 है, ये मॉलिक्यूल पांचों के पांचों बहुत सारे कोलिजन कर रहे होंगे ना, तो पांचों मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी कोलिजन के बाद? सर चेंज होगी। चेंज होगी। पता है क्या, इन पांचों मॉलिक्यूल्स की अगर वेलोसिटी चेंज हो गई ना तो कंटेनर के अंदर कोई और 5 मॉलिक्यूल आ जाएंगे उसी वक्त जिनकी वेलोसिटी v1 रहेगी। मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी हमेशा हमेशा सेम रहेगी सर। अंडरस्टूड? सब बच्चों को इतना बात समझ में आया? सर नहीं नहीं सर लास्ट वाली बात में दोबारा डाउट दोबारा 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 सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास 1000 मॉलिक्यूल्स कंटेनर में, तुम जिस कमरे में हो उस कमरे में हवा है ना, सपोज करो 5 मॉलिक्यूल उस पूरी हवा में ऐसे जिनका वेलोसिटी v1 है। कितना? v1 सर। v1 है। अब ये v1 मॉलिक्यूल्स आपस में मूव कर रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे। हर एक कोलिजन में इनकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी सर। और बट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने कहा है कि फ्रैक्शन जो है ना एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का, वो हमेशा फिक्स है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, करेक्ट? यस सर। तो अगर 5 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी v1 है तुम्हारे कंटेनर के अंदर, तो 5 मॉलिक्यूल्स अगर वो कोलाइड करेंगे, पांचों की वेलोसिटी चेंज होगी। मुझे नहीं पता, कुछ भी चेंज हो, v2 हो जाए, v3 हो जाए, v4 हो जाए, v5 हो जाए, भाड़ में जाए, बट चक्कर क्या है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब 5 मॉलिक्यूल ऐसे बनेंगे जिनकी वापस से वेलोसिटी कितनी होगी? वैदे v1 सर। ऑन। हाँ, सर क्या होगा? समझा। पार्ट नहीं समझ 5 मॉलिक्यूल ऐसे बनेंगे जिनकी वेलोसिटी क्या होगी? सर v1 हो जाएगी। v1 हो जाएगी। लास्ट पार्ट नहीं समझा। अंडरस्टूड? मतलब हमेशा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी v1 है कंटेनर के अंदर क्या रहेंगे? सर कांस्टेंट रहेगी, फिक्स फिक्स रहेगी। रहेंगे, फिक्स रहेंगे। चिन्मय, अंडरस्टूड? सर लास्ट पार्ट नहीं समझा। मैंने बोला कि अगर मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, हर एक कोलिजन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो तुम्हारे रूम के जहाँ पे तुम बैठे हो उस कमरे में 5 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी v1 है। v1 मान लो 10⁴ मीटर पर सेकेंड, तो वो मूव कर रहे हैं 10⁴ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अगर वो पांचों के पांचों मॉलिक्यूल्स अगर पहला कोलिजन करते हैं ना तो पांचों की वेलोसिटी चेंज होगी। अब चक्कर क्या, उन 5 की वेलोसिटी चेंज हो गई ना, तो उसी टाइम पे 5 नए मॉलिक्यूल ऐसे बनेंगे जिनकी वेलोसिटी 10⁴ मीटर पर सेकेंड होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी will always be different or same? Will always be सेम। understood? यस सर। Amit, you got that? Yes, sir. Good. Guys, सबको समझ में आया? यस सर। Great. Great. Yes, sir. Great. Now listen. Where are we? Second.
the gas molecules सर आप फर्स्ट पॉइंट एक और बार समझा सकते हैं हाँ प्लीज? बेटा, 2 बार समझो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बताओ, जब वेलोसिटी गैस मॉलिक्यूल्स की 0 है तो उसका फ्रैक्शन कितना है, किस पॉइंट पे टच कर रहा वही होगा सर। है? 0 ना। हाँ सर। तो एक बार बताओ, फ्रैक्शन 0 मतलब कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है जिसका वेलोसिटी 0 है, तो मतलब कोई भी मॉलिक्यूल रेस्ट पर नहीं है। ओके सर। ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दैट द गैस मॉलिक्यूल्स are colliding elastically. And during collision with each other, during collision with each other, the gas molecule velocity changes. But the fraction of molecules having a particular velocity at constant temperature will be what? Fixed, so. Constant. Understood? ओए बच्चा पार्टी समझ आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Now, at a given temperature, सर yes. सर कोलाइडिंग इलास्टिकली मतलब अरे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इलास्टिक कोलिजन में ना नेट काइनेटिक एनर्जी और नेट मोमेंटम कंजर्व रहता है। ओके सर। ठीक है, मतलब ये है कि अगर एक मॉलिक्यूल जिसका मास m है, वेलोसिटी v1 है, वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करे जिसका मास m है, वेलोसिटी v2 है, ये आया इधर, ये आया इधर, बोथ ऑफ देम कोलाइडेड एंड कोलिजन के बाद ना दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v3 एंड अ वेलोसिटी v4। तो mv3 plus mv4 final momentum will be equal to mv1 plus mv2 initial momentum. Understood? यस सर अंडरस्टूड। वेरी गुड। ये तो नॉन इलास्टिक में भी होता है। और क्या है, हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी थ्री स्क्वायर प्लस हाफ एम वी फोर स्क्वायर। अंडरस्टूड? यस सर। नेट काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज नेट मोमेंटम कंजर्व रहता है। अंडरस्टूड? Now understand one more thing here. Again, another point. What Maxwell-Boltzmann told. At a given temperature, fraction of molecule having lower velocity is less, and fraction of molecule having higher velocity क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। काम होगा। Yeah, is less. कम velocity भी less होता है, high velocity भी Sir, less होता है. intermediate velocity का high रहता है. Yeah, but the fraction of molecule having intermediate velocity
is high. Understood, guys? Yes, sir. इसको लिख लो, then I'll rub this off. ठीक है? Done, sir. Very good. Done, sir. Nice. अनादि लिखा? Sir, last part. लिखो लिखो. सर लास्ट पॉइंट बताइए ना प्लीज एक बार। हाँ जी. इस पार्ट एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। Okay. Give me a minute. लास्ट पार्ट ये है कि अगर मैंने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का कर्व बनाया किसी भी टेम्परेचर पर, कर्व ऐसा बनाया, ठीक है, ये हो गया लोअर वेलोसिटी, ये हो गया हायर वेलोसिटी, ये हो गया इंटरमीडिएट वेलोसिटी. लोअर वेलोसिटी का फ्रैक्शन कम है, हायर वेलोसिटी का भी फ्रैक्शन कम है, इंटरमीडिएट वेलोसिटी का जो फ्रैक्शन है वो क्या है बेटा, क्या है? इंटरमीडिएट वेलोसिटी का फ्रैक्शन हाईएस्ट। ज्यादा है ना, हाईएस्ट नहीं, ज्यादा. हाईएस्ट फ्रैक्शन तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का होगा. वो एक ऐसी इंटरमीडिएट वेलोसिटी जिसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं. ठीक है? ओके, आई गेस इसको हटाऊं. Share of this. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Where are we? Maxwell uncle. Fourth point, right? Yes, sir. Sir. On increasing the temperature. One second. हाँ, on increasing the temperature, क्या होगा? Sir, fraction of molecules having higher velocity increases. On increasing the temperature, mu RMS, mu most probable and mu average, उसका क्या होगा? Sir, decrease होगा. Increases. हाँ sir. Velocity increase होगा. But Sir, fraction of molecules decrease होंगे. the fraction of molecules containing those velocities decreases. Getting it? 5. सर वो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर की बात आपने क्या लिखा है? URMS, root means square. MP most probable, AVG average. On increasing the temperature, again on increasing the temperature, fraction of molecules containing higher velocity क्या होगा? Increase होगा sir. Decrease. Increases, but the fraction of molecules having low और intermediate velocity क्या होगा? Sir, decrease Decrease. होगा. Decreases.
हाँ अच्छा, टेम्परेचर बढ़ने पे नेट काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जब हायर वेलोसिटी वाले फ्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो नेट काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। वेरी गुड, अभी लिख लो इसको, ठीक है। On increasing the temperature, सर फिफ्थ पॉइंट एक और बार समझा सकते हैं क्या? हाँ ना बेटा, देख एक बार बता, अगर हम कर्व की बात करें तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन अंकल ने क्या कहा था कि ये तुम्हारा इनिशियल है, तो लेट्स से ये हायर वेलोसिटी u3 ले लो, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और पूरा जो एरिया होगा ये नेट फ्रैक्शन होगा किसका? मॉलिक्यूल्स का जिसके पास u3 है और मोर देन u3 है, करेक्ट? ये हायर वेलोसिटी फ्रैक्शन है। कोई दिक्कत बेटा, इतना समझ में आया? हाँ सर। अच्छा एक मिनट, अब मैंने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? कर्व ऐसा हो जाता है, तो u3 वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या हो गया, और u3 से ज्यादा जो फ्रैक्शन है जो एंड द कर्व है वो क्या देगा? u3 इन फ्रैक्शन जिनका वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी u3 है और u3 से ज्यादा है वही देगा ना। तो मुझे बताओ फाइनल फ्रैक्शन बढ़ा के कम हुआ जिनका u3 है? बढ़ा सर। बढ़ा ना। अगर u3 वाला फ्रैक्शन बढ़ा तो लोअर वेलोसिटी वाला और इंटरमीडिएट वेलोसिटी वाला फ्रैक्शन क्या होगा? पहले इंटरमीडिएट वेलोसिटी इतनी थी, ये फ्रैक्शन था, अब इंटरमीडिएट वेलोसिटी का फ्रैक्शन ये हो गया, घटा कि बढ़ा? पहले फ्रैक्शन है इतना, अभी फ्रैक्शन इतना, इंटरमीडिएट वेलोसिटी घटा। घटा। लोअर वेलोसिटी ये ले लो, पहले लोअर वेलोसिटी का फ्रैक्शन इतना था, अब लोअर वेलोसिटी का फ्रैक्शन इतना रह गया, तो फ्रैक्शन घटा कि बढ़ा? घटा। तो ये लिखो ना, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग हायर वेलोसिटी इंक्रीजेस, करेक्ट? but the fraction of molecules having lower or intermediate velocity decreases. Understood? समझा सर। Very good. लिख लिया बच्चा पार्टी? यस सर। Okay. Why you guys have switched off your cam? Switch on your cam. Cam will tell me a lot of things about you, whether you're getting it or not. Okay. इसको क्या मैं चलो, shall we start? Shall I up this now? यस सर। Yes, sir. Okay. तो क्या देते हैं? हाँ, तो that was the thing which is given by whom? Maxwell and बोल्ट्जमैन सर। बोल्ट्जमैन, ठीक है। अच्छा एक और चीज, okay, now we were discussing a very important thing here, ठीक है। मुझे ना यू मोस्ट प्रोबेबल का वो बताओ फॉर्मूला, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सर अंडर रूट ऑफ 2 RT बाय मॉलिक्यूलर वेट। रूट ऑफ 2 RT by m naught, correct? Average Under root root of 8 RT by pi m naught.
8 by pi RT by m naught, ठीक है, and RMS. Sir, under root of 3 DRT RT by by m naught. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा एक बात बताओ, लेट्स से एक गैस सैंपल है, आई हैव अ गैस सैंपल जिसमें ना मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और वेलोसिटी है, ठीक है. लेट्स से 10 मॉलिक्यूल्स के पास 5 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी. 20 के पास मेरे पास 10⁴ मीटर पर सेकेंड है. 30 molecules are having a velocity of, let's say, 3 into 10⁴ meter per second. 40 molecules have velocity, let's say 4 into 10⁴ meter per second, and 50 molecules have a velocity of 2 into 10⁴ meter per second. Now listen to it. These are the number of molecules and this is the velocity pertaining to those molecules, ठीक है. This is number. अब most probable velocity तुम्हारे हिसाब से क्या होगी? Sir, 2 into 10⁴ meter per second. ऐसा फ्रैक्शन जो कि मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसकी वेलोसिटी इतनी है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी. तो एक बार बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से इनमें से, पूरे फ्रैक्शन में से? 50 sir. 50. तो इसकी जो वेलोसिटी है वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी, द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओए हाँ या ना? हाँ सर. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. इतना समझ में आया? अरे हाँ या ना? रिमझिम वाई सो नर्वस, क्या हुआ? इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes. इतना टेंशन क्यों? This is just the data. I'm just telling you how to calculate all the average velocity, RMS and everything. ठीक है? सर एक और बार एक्सप्लेन कीजिए ना. अच्छा मुझे ना उसका मतलब बताओ, किसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय UMP? नंबर फ्रैक्शन जिसका सबसे ज्यादा हो. नहीं, ऐसी वेलोसिटी जिसका फ्रैक्शन सबसे ज्यादा हो. ओके. मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो पर्टिकुलर वेलोसिटी रखने चाहिए अपने पास, करेक्ट? तो उस वेलोसिटी को मैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलूंगा. एग्री? तो एक बार बताओ, एक ऐसी वेलोसिटी दिख रही है तुम्हें इसमें से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है? कौन सी वेलोसिटी मैक्सिमम नंबर के पास है? लास्ट वाला. हाँ, तो 2 into 10⁴. लास्ट वाला क्या हो गया? हाँ. मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. अंडरस्टूड? यस सर. अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज करना आता तुम लोगों को? Sir, 4.2 into 10⁴ meter per second. वेरी गुड. एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज मतलब एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटी. उसका फॉर्मूला क्या है? Sir, अरे रुको ना, 10/2. सुनो ना मेरी बात. एवरेज कैसे निकालते हो? अगर सपोज करो 10 और 20 है, उसका एवरेज क्या होगा? 15 sir. 15 ना. अच्छा 2 10 है और 1 20 है, उसका एवरेज क्या होगा? Sir, उसका 40/3 होगा. हाँ, 2 के पास 10 है और 1 के पास क्या है? तो नेट समीशन बाय नेट नंबर, इसी को एवरेज कहते हैं ना. नेट समीशन बाय नेट नंबर, इसी को एवरेज कहते हैं ना. अरे यार सीरियसली, मेरे पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 20 रुपए हैं, 20 रुपए हैं, 40 हैं. 40 का तो नोट ही नहीं आता ना, सॉरी. 50 है, 50 है, कहाँ गया? 50 है, 100 है, 200 के नोट है एंड 1 500 है. तो उसका एवरेज क्या होगा? 10 + 10 + 20 + 20 +
50 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 500 डिवाइड बाय क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ऐसे ही निकालते ना एवरेज? Yes, sir. यस सर। अच्छा एक बात बताओ, 2 बार 10 आ रहा है, कहाँ गया? 2 बार 10 आ रहा है तो 2 इंटू 10 लिख दूं। 2 बार 20 आ रहा है तो 2 इंटू 20 लिख देता हूँ। 2 बार 100 आ रहा है तो 2 इंटू 100 लिख लेता हूँ। एक बार 50 आ रहा है और एक बार 500 आ रहा है, तो नेट कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 8। सिमिलरली अगर 10 मॉलिक्यूल्स के पास इतना वेलोसिटी है तो 10 इंटू 5 इंटू 10 इज टू पावर 4, तो 10 मॉलिक्यूल के पास इतना वेलोसिटी, प्लस 20 के पास कितना है? 20 into 10 to वेरी गुड। प्लस 30 मॉलिक्यूल्स के पास कितना है? प्लस 40 मॉलिक्यूल्स के पास कितना है? प्लस 50 मॉलिक्यूल्स के पास कितना है? डिवाइड बाय नेट नंबर। नेट नंबर कितना है? 150. 100, sir. 100 प्लस 150, sir. 150। एग्रीड? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट क्या कहते हैं इसको, एवरेज वेलोसिटी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अंडरस्टूड? इसको क्या बोलते हैं? समेशन। तो समेशन ऑफ NiUi into Ni। अंडरस्टूड? where I is from 1 to n, 1 to n। ये समझ में आया कैसे लिखा? यस सर। Yes, sir. इसी को ही हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। आज मैं तुमको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। अंडरस्टूड? थोड़ी देर बाद फिजिक्स पढ़ाऊंगा। डन? Yes, उसका sir. आंसर क्या आया? व्हाट द आंसर आई विल गेट हियर? Sir, 2.8 into Sir, 10 to the 2.8 power into 4 10 raised meter to per power second. 4. वेरी गुड। डन? Yes, sir. चलो इसको रब करूं। आपने नीचे वाले ब्रैकेट में क्या लिखा समेशन के नीचे? समेशन ऑफ Ni मतलब सारे मॉलिक्यूल्स का समेशन। समेशन ऑफ NiUi का मतलब होता है समेशन के नीचे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू वेलोसिटी का समेशन। इसको लिख लो। Done? Yes, sir. Okay. Now URMS का मतलब क्या होता है? It is like root, mean, square। इसको उल्टा पढ़ो, स्क्वायर, मीन, रूट। मतलब पहले उनके स्क्वायर का मीन निकालो, मतलब U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर प्लस U4 स्क्वायर सो ऑन। उसका मीन मतलब एवरेज डिवाइड बाय n, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, उसका एवरेज डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन उसका रूट। यू अंडरस्टूड यूआरएमएस का? यूआरएमएस कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, n1 u1 स्क्वायर प्लस n2 u2 स्क्वायर प्लस n3 u3 स्क्वायर प्लस n4 u4 स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, देन उसका अंडर रूट। लिख सकता हूं?
अरे दोनों ही एवरेज के फॉर्मूले ना, हाँ सर। है ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, इसको अल्टीमेटली ऐसा लिखा जा सकता है, समेशन ऑफ NIUI स्क्वायर, आई को 1 से लेके n तक लेके जाओ, डिवाइड बाय समेशन ऑफ NI, आई को 1 से n तक लेके जाओ। अंडरस्टूड? यही फॉर्मूला आ जाएगा। डन? एक बार थोड़ा वापस समझा सकते हैं? मैं पूरा समझाता हूँ। एक बात बताओ, मेरे पास 5 आदमी है, 5 नहीं 6 ले लो, अच्छा रहेगा। इस आदमी का वेलोसिटी 10 है, इसका 20 है, इसका भी 10 है, इसका भी 20 है, इसका 30 है और इसका 10 है। इसका स्क्वायर का मीन कैसे निकालोगे? इसका क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर प्लस, वेरी गुड, प्लस 20 स्क्वायर प्लस टोटल कितने आदमी थे? 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, करेक्ट है ना? ये एक बात बताओ, 3 आदमियों का वेलोसिटी स्क्वायर में कितना है? 10। तो मैं इसको 3 × 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ सर। प्लस 2 × 20 स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 30 लिख सकता हूँ। करेक्ट? 30 का स्क्वायर। कोई परेशानी इसमें? डिवाइड बाय 3 आदमी प्लस 2 आदमी प्लस 1 आदमी, ऐसे लिख सकता हूँ। ये दोनों चीजें सेम ही है ना, मतलब चाहे ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, बात तो सेम ही है ना। N1 मॉलिक्यूल्स का U1 स्क्वायर, N2 का U2 स्क्वायर, N3 का U3 स्क्वायर, या फिर इंडिविजुअली कैलकुलेट करूं, बात तो एक ही आएगी ना। अरे ये दोनों सेम है कि अलग अलग हैं? मैं भी तो यही कह रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम है कि अलग अलग है? सेम है ना। तो इस वाले फॉर्मूले को इस तरीके से लिखा, कोई दिक्कत? आई को 1 से n तक लेके जाओ, N1 U1 स्क्वायर प्लस N2 U2 स्क्वायर प्लस N3 U3 स्क्वायर प्लस N4 U4 स्क्वायर डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, कर सकते हैं ना? तो ये तीनों चीजें सेम है, ये सारी चीजें सेम है, तो अंडरस्टूड कैसे निकालते हैं एवरेज? वेरी गुड। अब एक बात बताओ, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, इन द लास्ट क्वेश्चन व्हाट वी डिड, we have taken 10 molecules having how much velocity? 5, correct? Yes sir. URMS क्या आएगा इसका? सर इसका URMS √138/15 × 10⁴ मीटर पर सेकंड है। वेरी गुड। अच्छा, 10 × 5 × 10⁴ फॉर्मूला बताओ, स्क्वायर प्लस 20 मॉलिक्यूल्स है जिनका वेलोसिटी कितना था? सर 10⁴। वेरी गुड। प्लस 30 मॉलिक्यूल्स है जिनका फॉर्मूला था? सर 3 × 10⁴। 40 मॉलिक्यूल्स है जिनका फॉर्मूला था, जिनका वेलोसिटी था? 4 × 10⁴। एंड 50 मॉलिक्यूल्स है जिनका था? सर 2 × 10⁴। अंडरस्टूड? डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स, टोटल कितना है इसमें? 150। 150। अंडरस्टूड? तो ये क्या आ जाएगा? 10⁴ तो बाहर निकाल लो, कॉमन आ गया। 10 + 10 × 25 2500 ना, 250
plus 20 plus 9 into 30 270 plus 16 into 40 कितना आएगा 640 एग्री 640. डिवाइडेड बाय 150 अंडर रूट Sir, 10 to the power 8. बेटा अंडर रूट के बाहर गया वो अच्छा, okay. सर 200 भी आएगा बाद में. 50 into 4 आएगा. अरे हाँ 200 तो 20 ले लें अब तो 20 84 84 सर 138 आएगा. 138 डिवाइड बाय 15 सर 9.2. 9.2 9.2 का अंडर रूट अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग तो 3 into 10 is to power 4 करेक्ट अप्रोक्सीमेटली यार एक बात बताओ ये आरएमएस वेलोसिटी 3 के करीब एवरेज कितना आया था अपने पास सर 2.8 into 10 to the power 4. 2.8 और एमपी क्या आया था सर 2 into 10 to the power 4. तो ज्यादा कौन सा है मेरे ख्याल से इस फॉर्मूले ने भी जस्टिफाई किया ना कि आरएमएस ज्यादा होता है एवरेज से एवरेज ज्यादा होता है मोस्ट प्रोबेबल से Yes sir. अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सर हाँ आपने जो किया ना सर ये रूट मीन स्क्वायर सर हाँ उसमें हाँ आप जो 10 20 10 आप 30 लिया वो नंबर ऑफ मतलब वो क्या है सर वो ही समझ में नहीं आया सर 1 सेकेंड गिव मी अ मिनट कौन सी चीज समझ में नहीं आई कि ये कैसे किया ये नहीं सर आपने जो लिखा है 10 20 30 ये देखिए 10 मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी था ना वो 5 into 10⁴ था ठीक है तो 10 मॉलिक्यूल्स का 5 into 10⁴ होल स्क्वायर फिर 20 मॉलिक्यूल्स का 10⁴ होल स्क्वायर फिर 30 मॉलिक्यूल्स का 3 into 10⁴ होल स्क्वायर देन 40 मॉलिक्यूल्स का 10⁴ into 10⁴ होल स्क्वायर देन 50 मॉलिक्यूल्स का 2 into 10⁴ होल स्क्वायर करेक्ट इसी फॉर्मूले को यूज किया और इस डेटा को यूज किया तो n1 u1 स्क्वायर प्लस n2 u2 स्क्वायर प्लस n3 u3 स्क्वायर प्लस n4 u4 स्क्वायर प्लस n5 u5 स्क्वायर तो डिवाइड बाय n कितना है टोटल 150 ओए कितने गया समझ में आया हाँ सर थोड़ा सा प्रीवियस वाला दिखाइए ना न्यू एवरेज वाला क्या दोबारा बोलो एक बार वो म्यू एवरेज दिखाया थोड़ा सा वो फॉर्मूला नहीं लिखा सर भूल गया था वो लिखना मैं दिखा देता हूँ ठीक है गिव मी अ मिनट पहले ये लिख लो उसके बाद वील गो दैट ठीक है ये एवरेज का इसको लिख सकते हो n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस n3 u3 so on divide by n1 plus n2 plus n3 so on ये एवरेज का बताना जब पेज शिफ्ट करना हो ठीक है ठीक है सर हो गया डन ओके एंड लिसन नेक्स्ट क्लास से ना अपना नाम पहले लिखना उसके बाद आईडी लिखना ठीक है वन सेकेंड बेटा लो खुश रहो
लिख लिया हो तो बता देना, ठीक है, देन वील मूव अहेड। And I'll send you these notes, ठीक है? That is why I use this particular application today. Good, good, fine. सर हाँ सर आपने जो अंडर रूट दिया है सर वो दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के लिए है ना सर? हाँ बेटा, ऑब्वियसली। ठीक है सर, दोनों के लिए। कंफर्मेशन के लिए पूछ लिया। ठीक है, डन। ओके, where are we now? अच्छा, अब ना हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का डेरिवेशन करना है। टुडे वील स्टार्ट विद फिजिक्स नाउ। बहुत हुआ। KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डेरिवेशन। हाँ, 15 मिनट्स में तो नहीं हो पाएगा, बट एनीवेज ठीक है ना, क्या करके देखते हैं। ओके, ओके, आई हैव टेकन अ क्यूब। एक कंटेनर है, तुम अपना रूम मान लो इसको, दिस इज अ रूम, क्यूबॉइड क्यूब रूम, ठीक है। इसका जो लेंथ है, लेट्स से इट इज गिवन टू अस एज L। इसके अंदर ना दिस इज द वॉल, ऑब्वियसली इज द वॉल ऑफ द कंटेनर। वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है। Now what I'm assuming here, in this container I have lot of gas molecules, ठीक है। Let's say N is the number of gas molecules. We'll do one thing. N is the number of gas molecule. M is mass of one gas molecule. अच्छा, एक बार बताओ, जब टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल n है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल m है, तो एक मॉलिक्यूल का मास m है, तो m इंटू n क्या होगा? सर टोटल मास। हाँ, टोटल। L is length of cubical container, ठीक है। एंड लेट्स से in this container lot of gas molecules are there, and मैं एक गैस मॉलिक्यूल लेता हूँ अभी इधर, ठीक है। I'll assume only one gas molecule अभी, ताकि मैं डेरिवेशन कर सकूं। ये गैस मॉलिक्यूल ना, लेट्स से
एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो अगर ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, लेट्स से इस एक्सिस में मूव करने की जो वेलोसिटी है उसकी वो ux1 है। ठीक है, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, एक और बार रिपीट करेंगे? अभी आ रही है आवाज बेटा? यस सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ इतना तो आ गया ना, यहाँ तक तो सब ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, तो एक गैस मॉलिक्यूल है, मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ ताकि डेरिवेशन कर पाऊँ। उस मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी है ना अलोंग एक्स एक्सिस, सपोज ये एक्स एक्सिस है, इज ux1। कोई दिक्कत? सर वेरी गुड। एक काम करते हैं, ये गैस मॉलिक्यूल को अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे ये कोलाइड किया। जब कोलाइड किया तो वापस आएगा, वापस आने के बाद दोबारा से इसी वॉल पे कोलाइड करेगा। तो दो कोलिजन लेते हैं, ठीक है, पहला एंड दूसरा। अब जब पहला कोलिजन हुआ, ठीक है, तो टेल मी कोलिजन क्या है, इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है? सर इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन में टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है कि चेंज होता है? कंजर्व होता है सर। अच्छा, वेलोसिटी क्या हुआ इस वॉल का? अगर गैस पार्टिकल इस वॉल पे जीरो टकराया सर। तो गैस वॉल के अंदर वेलोसिटी चेंज कितना आया? कुछ आया क्या? नो सर। तो क्या कोई चेंज आएगा वेलोसिटी में किसके, गैस मॉलिक्यूल्स के? सर बस उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। हाँ, उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, तो मतलब जब कोलाइड किया तो डायरेक्शन रिवर्स होगी, तो मैग्नीट्यूड ux1 ही रहा, करेक्ट? यस सर। इस एक्सिस को पॉजिटिव एक्सिस मान रहा हूँ, चलेगा? ओके चलो, सर। अब मुझे ना कुछ लिखना है। इन दिस कंटेनर n molecules of ideal gas are moving randomly, right? The pressure is caused by the collision of these gas molecules. सर मैं ये डिस्कनेक्ट हो गया था सर, वापस समझा सकते हो? एक कहाँ दो पे डिस्कनेक्ट हुआ ये बता? सर ये इलास्टिक वाले के बाद। हाँ, मैंने क्या कहा था कि अगर कोलिजन इलास्टिक है तो वॉल में कोई वेलोसिटी चेंज आ रहा है क्या? जब ये पार्टिकल टकराएगा इस वॉल के साथ तो क्या इसके अंदर कोई वेलोसिटी चेंज आएगा क्या? अरे क्या वॉल हिलने लगेगी? सर नहीं सर। नहीं ना, तो वेलोसिटी चेंज नहीं आया ना वॉल के अंदर। और मैंने क्या कहा था कि पूरा मोमेंटम कंजर्व रहता है, एग्रीड? हाँ तो अगर इस मॉलिक्यूल का जो गैस मॉलिक्यूल का जो मोमेंट वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में ux1 है, जब इसकी वेलोसिटी में कुछ फर्क नहीं आया तो सेम वेलोसिटी रहेगी हाँ सर। ताकि मोमेंटम कंजर्व रहे, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, in this container n molecules of ideal gas are moving randomly and the pressure is caused by the collision of these gas molecules with the walls of the container, agreed? प्रेशर का, अच्छा एक बात बताओ, प्रेशर इस वाली वॉल पे, ऊपर वाली वॉल पे, लेफ्ट हैंड साइड वाली वॉल पे, तुम्हारे तरफ वो फेस करती हुई वॉल पे, पीछे वाली वॉल पे, हर जगह सेम है कि अलग अलग है? सेम है सर। वेरी गुड, so proud of you. So shall I say that pressure along x axis is equal to pressure along y axis is equal to pressure along z axis, that is pressure throughout the container is same, pressure inside the container is same along every direction, agreed?
भाई लाल पीलो हरे नीलो, इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एंड प्रेशर क्या होगा? पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड इज इक्वल टू पी विल बी इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है, चलो अभी एक चीज सुनो, देखते हैं कैसे करना है इसको। ठीक है, फोर्स अजय का बताओ। पहले तो ड्यूरिंग कोलिजन चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। तो वी हैव अज्यूम्ड अ गैस पार्टिकल मूविंग अलोंग दिस नेगेटिव एक्सिस कोलाइडिंग एंड कमिंग बैक। ठीक है, तो शैल आई से दैट डेल्टा पी will be equal to change in momentum. Delta P is change in momentum. What is the change in momentum? Final momentum minus initial momentum, correct? Yes, sir. Very good. Final momentum into final momentum minus initial momentum. फाइनल मोमेंटम कितना है? मास इंटू वेलोसिटी ux1। कोई दिक्कत? No, sir. वेरी गुड। माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम Sir, minus m into ux. माइनस ux1। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है ना, इस डायरेक्शन में Change in momentum 2 times m into ux. इस डायरेक्शन में वेलोसिटी माइनस ux1 है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी प्लस ux1 है। एग्रीड? Velocity is a vector quantity if I am not wrong. Yes, sir. Very good. तो क्या आ जाएगा इधर? Sir, 2m into ux. x1. Agreed? हाँ, done. Yes, sir. चलो इतना लिखो, then we'll move ahead. लिख लिया। Done, sir. अरे वाह, इतनी जल्दी लिख भी लिया तुम लोगों ने? 1 सेकंड सर। अच्छा 1 सेकेंड लो भाई, तुम लो 1 सेकेंड लो। अमित, अंडरस्टूड? Yes, sir. गुड। तो लिखा, you understood? Yes, sir. Okay. Now today what we have done maths also and we are doing physics also. Hope you'll understand everything properly. हम गैस के साथ खेलने वाले हैं, हर एक मॉलिक्यूल को पकड़ के ना धोने वाले हैं उनको, और कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। किस चीज के लिए? मतलब आप नेक्स्ट पेज जा सकते। ओके फाइन, मुझे लगा गैस मॉलिक्यूल्स के लिए कुछ बोल रहे हो। शिट, एडन शायद अब दिस से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now आ गया अमित, चलो। KTG derivation continue। हाँ, अभी हमने क्या किया? चेंज इन मोमेंटम निकाला। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 2m ux1। डन? एक बात बताओ, थोड़ा सा ना ढंग से सोचना। ये जो गैस पार्टिकल है वो अगर, कहाँ गई ये वॉल? रुको, ये वॉल थी, वॉल, अब बिलवड वॉल। ठीक है, इस वॉल और दूसरी वॉल के बीच में डिस्टेंस कितना था? क्यूब है ना, क्यूब। L, sir. L. एल। क्या हुआ? पहला मॉलिक्यूल यहाँ पे कोलाइड किया, यहाँ कोलाइड किया, अब इसको वापस से इतना ट्रैवल करना पड़ेगा,
फिर कोलाइड करेगा, फिर वापस आके इसी सेम वॉल पे कोलाइड करेगा। मुझे ना फोर्स निकालना है इस पूरी वॉल के ऊपर। तो एक बात बताओ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी collision frequency will be equal to 1 by time period सर तो UXI by L हो गया। बाबा पहले तो मुझे ये बताओ कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 बाय टाइम पीरियड। अच्छा एक बात बताओ, इस पार्टिकल को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा दूसरी कोलिजन करने के लिए? सर 2L। 2L। तो टाइम पीरियड टाइम क्या कितना लगा इसको? सर 2L टाइम अपॉन होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, करेक्ट? अरे हाँ ना? यस सर। कितना डिस्टेंस कवर किया भाई साहब ने दो कोलिजन के बीच में? एग्री? 2L सर। यल प्लस यल कितना? 2L। वेलोसिटी कितना था इसका? x1 सर। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? ओ कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? सर UX1 by 2L। इतना समझ में आया? यस सर। सच्ची बोलो, इतना समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, now shall I say that pressure along x-axis will be equal to force exhibit on the x-axis per unit area. Can I say that? यस सर। अच्छा, अब नेट फोर्स along x-axis कितना होगा इस मॉलिक्यूल के लिए? चेंज इन मोमेंटम into collision frequency. That is change in momentum by time period. dp by dt क्या होता है? अरे collision frequency is 1 by time period ना, तो dp by dt क्या होता है? सर वो इक्वेशन कहाँ से आई? बेटा क्या बताओ, f is equal to dp by dt सुना? सर चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम है ना? तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम कितना टाइम पीरियड लगा इसको? क्या कहते हैं? 1 बाय टाइम पीरियड इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ना? यस सर, थैंक यू। तो कितना लगेगा ये गाइस? फॉर गॉड्स सेक, चेंज इन मोमेंटम कितना है? सर 2m into UX1। कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितना है? सर 2L by UX1 by 2L। वेरी गुड। ux1 बाय 2l। सर तो UX1 स्क्वायर into m by L हो जाएगा। m ux1 होल स्क्वायर बाय l। ये फोर्स लगा रहा है एक पार्टिकल, करेक्ट? सर आप फोर्स वाला आपको फिर कैसे जाएगा? क्या गाइस, क्या पूछ रहे हो, क्या बोल रहे हो? हिंदी में बोलो ना, अंग्रेजी में बोलो, बट साफ बोलो ना। सर जो फोर्स वाला पार्ट है ना, आप फिर से समझाइए। आई विल टेल यू। सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन अंकल ने बोला था F इज इक्वल टू dp by dt। पता है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम पीरियड, टाइम पता है इतना? F इज इक्वल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t। डेल्टा t क्या हो गया? चेंज इन टाइम, मतलब टाइम पीरियड कितना लगा? 1 बाय टाइम पीरियड क्या हो गया? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। दैट इज मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इनटू कोलिजन फ्रीक्वेंसी करूंगा तो फोर्स आ जाएगा एक पार्टिकल जो एक्स एक्सिस पे उस वॉल पे लगा रहा है। हाँ श्योर? हाँ। चलो ग्रेट। सोचो, मेरे पास एक पार्टिकल है कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं? बहुत सारे। बहुत सारे। बहुत सारे, बहुत सारे। वी हैव लॉट ऑफ पार्टिकल्स, राइट? तो लेट्स से ये पार्टिकल का वेलोसिटी u1 था, इस पार्टिकल का वेलोसिटी u2 था, इसका u3 था, इसका u4 था, इसका u5 था, u6 था, बहुत सारे थे,
गेटिंग अ पॉइंट? तो शैल आई से दैट अगर एक पार्टिकल का फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इतना लगा तो n पार्टिकल्स का कितना लगेगा? For n particles, force will become equal to m by l कॉमन ले रहा हूं, ux1 होल स्क्वायर प्लस ux2 होल स्क्वायर प्लस ux3 होल स्क्वायर प्लस ux4 होल स्क्वायर so on till un स्क्वायर. अंडरस्टूड? Yes, sir. समझ में आई बात? सर आपने वो एंड में क्या लिखा है? n n n, ये ux1 ले लो, ux2 ले लो, ये ux3 ले लो, ये ux4 ले लो, है कि नहीं? यस सर. अच्छा, इतना आ गया फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस. Yes, sir. अरे वाह. अच्छा जो मेरा मॉलिक्यूल है, थोड़ा ना कॉमन सेंस चाहिए. अभी तुम खुद सोचो, ये गैस मॉलिक्यूल है. अगर ये गैस मॉलिक्यूल है, ये कैसे मूव कर रहा है? रैंडमली मूव कर रहा है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मूव कर रहा है? Sir, randomly move कर रहा है. अच्छा, जब रैंडमली मूव करता है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हर एक जगह पे क्या होता है? Uniform होता है sir. यूनिफॉर्म होता है. तो मतलब इफ दिस गैस मॉलिक्यूल इज मूविंग रैंडमली, रैंडम मोशन की वजह से हर जगह जब रैंडमली मूव कर रहा है, राइट? आई लाइक दिस स्टुपिडिटी, इज गुड. दिस इज अ रैंडम मोशन ऑफ द गैस पार्टिकल. शैल आई से दैट बिकॉज ऑफ दिस रैंडम मोशन ऑफ गैस पार्टिकल, रुक जाओ, रैंडम मोशन ऑफ गैस पार्टिकल, इसका वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ux1, इसका वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस ux2 और इसका वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस ux3 सेम होगा कि अलग अलग होगा? Same होगा sir. आर यू गेटिंग अ पॉइंट? वन सेकेंड, अलग तरीके से लिखते हैं. इसका वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस दैट इज ux1, इसका वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस uy1, इसका वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस uz1. सेम होगा ना कि अलग अलग होगा? अगर मोशन रैंडम है तो Same होगा sir. अच्छा, अब इतना पता है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है. अगर इसका वेक्टर का नेट रिजल्टेंट निकालना है तो u रिजल्टेंट जो होगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ux1 स्क्वायर प्लस uy1 स्क्वायर प्लस uz1 स्क्वायर. इतना पता है? Yes sir. हाँ सर. सच्ची? लास्ट पार्ट रिपीट कीजिए सच्ची? सर. लास्ट पार्ट. अच्छा, वन सेकेंड, क्या मेरी आवाज कट रही है क्या? नहीं सर, आवाज नहीं कट रही. लास्ट पार्ट रिपीट कीजिए. अच्छा, वन सेकेंड. लास्ट पार्ट मैंने बोला गैस सर पार्टिकल. मुझे वो सुना आपने जो. सुनो तो, गैस पार्टिकल रैंडमली कर रहा है ना? तो इसका मोशन इस डायरेक्शन में, रुक जाओ. अगर कोई भी चीज रैंडमली मूव करती है तो उसका मोशन इस डायरेक्शन में, 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 हर डायरेक्शन में क्या होता है? फॉर्म होता है. सेम होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. अगर इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में ux1 है, uy1 है और uz1 है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि इसकी वेलोसिटी ux1, uy1 और uz1 हर एक डायरेक्शन में सेम होगी. यस सर. वेरी गुड. और वेलोसिटी ux1, uy1, uz1 जब x, y और z एक्सिस में वेक्टर होता है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? यही होता है. यस सर. वेरी गुड. तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आया वेलोसिटी का, मैं ux ही ले रहा हूँ, ठीक है? तो 3 बार ux1 लिख सकता हूँ इसको. Yes sir. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 ux1. तो ux1 विल बिकम इक्वल टू u बाय रूट 3. लिख सकता हूँ? कह दो हाँ. Yes sir. गाइस, इतना समझ में आया? यस सर. श्योर? सर यस. आपने जो लिखा ना फॉर एन पार्टिकल वो समझ में नहीं आया सर. देख यार, किधर गया?
फॉर n पार्टिकल, मेरे को पता है ना मेरे पास n पार्टिकल्स है, मतलब एक गैस पार्टिकल ux1 से मूव कर रहा होगा, दूसरा गैस पार्टिकल ux2 से मूव कर रहा होगा, तीसरा ux3 से कर रहा होगा, चौथा ux4 से कर रहा होगा। अगर एक पार्टिकल ux1 से कर रहा था तो इतना फोर्स लगा रहा था, करेक्ट। दूसरा पार्टिकल अगर ux2 से कर रहा होगा तो ux2 स्क्वायर लगाएगा, तीसरा सर आपने बोला था कि वेलोसिटी तो एक मतलब उनका सेम ही रहता है ना सर? बेटा हर एक गैस पार्टिकल का तो अलग रहेगा ना, एक गैस पार्टिकल के लिए हर हाँ एक वो डायरेक्शन अलग। में सेम अच्छा रहेगा। आपने हर एक का लिया है क्या सर? ठीक, हाँ जगह हर पूरा एक को अलग अलग लिया है अभी, है ना। ठीक है सर। अरे समझा, एक गैस पार्टिकल का हर डायरेक्शन में सेम होगा, बट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने कहा है ना कि हर एक गैस पार्टिकल का हर एक अलग वेलोसिटी होगा। जी सर। हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, इतना समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। अब सीन क्या है, ux1 को मैं u1 की टर्म्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ux1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर बाय 3 लिखूंगा, इसको u1 स्क्वायर बाय 3 लिखूंगा, इसको u2 स्क्वायर बाय 3 लिखूंगा, इसको u3 स्क्वायर बाय 3 लिखूंगा, इसको u4 स्क्वायर बाय 3 लिखूंगा। लिख सकता हूँ? यस सर। वेरी गुड। अरे लिख सकता हूँ, कहाँ गए सारे? यस सर। यही हो ना? हाँ रुको, तो मुझे क्या बताओ, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितना आया? m/l सर कॉमन ले लिया था 3 और डिवाइड ले कॉमन लेंगे लेता हूँ, इन ब्रैकेट में क्या लिखूं? सर u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर टिल un स्क्वायर। 1 सेकेंड, u2 स्क्वायर टिल un स्क्वायर लिख लूं, करेक्ट? या खुशी, व्हाई नॉट? सर एक बार पीछे कीजिए ना। सर हमने बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया ना अगले स्टेप में। हाँ बेटा। सर हाँ इसमें आपने मतलब लाइक रैंडम मोशन क्या लिखा है सर उस वो वाला? see I said a gas particle is moving randomly, so the direction of velocity in every the magnitude of velocity in every direction will be same. Understood? Very understood. Tulika, you got it? Yes, sir. Amit? Yes, sir. Very good. Aditya understood. Dream Jim got it. नहीं? Okay. Okay, got it. Shall we move to next slide? यस सर। Cool. 1 second. Yep. Okay, cool. Done. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टोटल हम, अच्छा 1 सेकेंड, पहले प्रेशर निकाल लेते हैं। चले से प्रेशर अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू प्रेशर अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू प्रेशर अलोंग z एक्सिस इज इक्वल टू प्रेशर, हर जगह सेम ही होता है, विल बी इक्वल टू, अगर मेरे को प्रेशर अलोंग x एक्सिस निकालना है तो फोर्स अलोंग x एक्सिस डिवाइड बाय एरिया निकालूंगा। ओ मेरे लाल पीलो हरे नीलो। यस सर। यस सर। तो एक बात बताओ, फोर्स कितना है? m/al 3l इंटू u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर टिल un स्क्वायर। एरिया क्या होगा क्यूब का? सर एल स्क्वायर। वेरी गुड, वॉल का एरिया एल स्क्वायर हो गया, तो l इंटू एल स्क्वायर क्या हुआ? सर एल क्यूब। वॉल्यूम हो गया। एरिया इंटू लेंथ क्या है? वॉल्यूम। यस सर। तो लिख सकता हूँ m/3v इंटू u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर टिल un स्क्वायर। अरे यार 1 सेकेंड,
यू विल फाइंड इन वेरी नाइस राइट नाउ. देखना प्रेशर कितना हो जाएगा, m/3v. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर टिल un स्क्वायर, राइट. मैं क्या इसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दूं और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दूं? तुमको कुछ परेशानी है क्या? नो सर. अच्छा, तो एक बात बताओ, URMS क्या होता है? u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर टिल un स्क्वायर बाय n का अंडर रूट. एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या होगा? ये Sir, URMS का होल स्क्वायर. Square. वेरी गुड. तो ये आ जाएगा 3mn इंटू 3v इंटू URMS होल स्क्वायर इज इक्वल टू p. तो मेरे पास PV इज इक्वल टू 1/3 m इंटू n इंटू URMS होल स्क्वायर आया. कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, 1 सेकेंड. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. एक बात बताओ, हाँ, इसे कहते हैं काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस. क्या बोलते हैं? Kinetic equation of gas. मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए छोटी सी. m इंटू n क्या होगा? Sir, total mass. टोटल वेट. हाँ, टोटल मास. तो PV इज इक्वल टू 1/3 इंटू टोटल मास. URMS स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? URMS का फॉर्मूला क्या है? Sir, under root of u1 square plus u. अच्छा, वो बात, हाँ. गैस के लिए By m naught, sir. 3RT बाय m नॉट. उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? Sir, bracket root खुल जाएगा 3RT by m naught. वेरी गुड. 3 से 3 गया. Sir, तो हमें सीधे हमारी. वेट बाय मॉलिक्यूलर Sir, वेट. वो फिर से आइडियल गैस इक्वेशन मिल हाँ, गया. sir. वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या आया? Sir, number of. Number of moles. तो ये क्या हो जाएगा? PV is equal to nRT. अंडरस्टूड. लास्ट वाला जो स्टेप है एक और बार बताइए, मतलब काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस निकालने के बाद वाला स्टेप. हाँ, समझ में आया क्या क्या आज किया हम लोगों ने? Yes, sir. चिन्मय, व्हाई सो सीरियस? समझ में आया? सर हाँ सर हाँ बेटा बोलो ना. लास्ट स्टेप एक बार बताएंगे काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस निकालने हाँ, के मैंने बाद. क्या किया? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज टोटल मास. इसको टोटल मास बोल लिया. URMS स्क्वायर को 3RT बाय m नॉट लिखा, बिकॉज अंडर URMS क्या होता है? रूट ऑफ 3RT बाय m नॉट. उसका स्क्वायर किया तो 3RT बाय m नॉट लिख लिया. 3 से 3 कट गया. टोटल वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स. तो आ गया नंबर ऑफ मोल्स इंटू RT. तो PV इज इक्वल टू nRT आ जाता है. आइडियल गैस. अंडरस्टूड? Yes, sir. सर हाँ बेटा. हाँ सर एक्चुअली मैं समझ नहीं पाया, आपने 1/3 टोटल मास इनटू 3 RT बाय वो आपने क्या किया समझ नहीं आया। बेटा, URMS होल स्क्वायर था कि नहीं था? हाँ सर. तो URMS का फॉर्मूला क्या बताया था? रूट ऑफ 3RT बाय m नॉट. हाँ रूट सर. को अगर स्क्वायर करोगे तो 3RT बाय m नॉट होगा कि नहीं होगा? बस उसको जी. पुट कर दिया तो मेरे पास PV इज इक्वल टू nRT आया. ठीक है सर. एक्चुअली मेरे दिमाग में नहीं आया, आपने जो URMS को आपने उससे किया है वो ठीक कोई है सर. नहीं, आगे अभी आ गया ना. अरे अभी आया कि नहीं आया? यस. गुड. अनदी, योर आईज आर लुकिंग टायर्ड. सोया नहीं रात को? नहीं सर, सोया था. झूठ बोल रहा. सच्ची में सर सोया था. ओके फाइन.
चलो, we'll wind up now. Correct. I'll send you these notes, right, guys? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Chalo, take care. Bye. Thank you, sir. Thank Bye, you, sir. Yeah. Bye. Bye. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Yeah. Thank you, Thank sir. you, sir. Bye. Is there homework group? Yeah, there's a homework group. I'll be like send you the link over there. Just be there, okay? And take some break. I'll tell the faculty to give 5-10 minutes break, right? Chalo, see ya. Whew.